Hello friends, I am Dr. Ritika from Paras Hospital Panchkula. So here I am again with another topic. So आज का जो हमारा topic है that will revolve around women and women health and how it is different from working women, working men and the women who are working at home. So we have our specialist with us, that is Dr. Vanna Mittal. She is Senior Consultant Ops and Gynae at Paras Hospital Panchkula. She will share and discuss this topic in detail with us. We welcome you, ma'am. Thank you for coming on this podcast. So, ma'am, सबसे पहले, first of all, we would like to know that what is this term health, what it is. देखिए यूजुअली अगर हम जनरल हेल्थ के लिए बारे में बात करेंगे तो एक कहते हैं कि फ्री ऑफ द डिजीज, कोई बीमारी से हमारी बॉडी फ्री है, दैट इज हेल्थ. बट एक्चुअली हेल्थ इज मच बियॉन्ड दिस. हेल्थ इज फ्री ऑफ द डिजीज along with physical and emotional and mental well-being. And when it comes to the women health, and it is far beyond. Why? The reason being the women health means free from the diseases, emotionally, mentally and physically well-being, along with ability to make decisions for herself and for her family. And lastly, access to the medical health for her problems. So, ma'am, how women health is different from the male counterparts, despite knowing the fact that both of us are working, but how still the women health is still under that red zone area, and how it is different from the male health? Firstly, हम हमेशा we see the woman as a very complex, difficult to understand. For me, I will say woman is not a complex. Right. It is her situation which makes her complex. Right. Since birth, she starts facing challenges. Right. First is gender discrimination when she goes into the adulthood, then the menstruation, her body image changes, and latterly marriage, workplace, motherhood. There she has many roles to play. And each role has its own challenge. So that's why we say कि उसको एक हर जगह हर पॉइंट पे लाइफ में एक चैलेंज आता है जिसके कारण वो एक खुद में एक कॉम्प्लेक्स बन जाती है. एंड उसके कारण अगर उसमें भी अगर उसको हेल्थ इश्यूज हैं, वो प्रॉपर उसको हेल्थ इश्यूज नहीं ट्रीट होते तो वो और भी ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट चैलेंजिंग हो जाता है. वुमेन जो है वो सिर्फ घर की बैकबोन नहीं है, वो एक सोसाइटी की बैकबोन है. Have you ever seen a home without female? Or can you imagine a society without female? I think फिर ये world वहीं पर ही stop हो जाएगा. Definitely. We cannot even imagine. Exactly. तो when we compare working women health and the working men health, challenges दोनों face करते हैं. But how the women health is different from the male. Now main aspect is कि many of us are unaware that majority of the deaths in female as compared to the male are because of the heart attacks. Females के अंदर heart attack का incidence males से ज़्यादा है because they often don't care about their health. Right. वो उनकी health underestimate हो जाती है. अगर हम actual data देखें तो death because of the heart attack in females are more than that of the males. Okay. Again coming to the stress, depression, mental illness problems again are more in the females than comparing to the males. Right. Osteoarthritis, sexually transmitted diseases, all these are more in female than comparing to the female. Okay. And other thing is unique features. Right. Have you ever seen a male giving birth? No. No. So menarche, pregnancy, Right. menopause, these are the ever challenging problems which a female has to go through. Right. Especially the monthly periods. She can only bear the monthly pains and the bleedings which she has to go through that. So this is the basic change. Whether it is she is a homemaker, she is a working female. So all these changes make her different from a working male. What should we, bring in your life or in the daily routine work or in the offices, different lifestyle or maybe different dietary habits with which we can focus more on women health and दर्शकों को भी ये पता लगे कि कैसे वो इसको improve कर सकते हैं. What are the improving factors? पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो challenges क्या फेस कर रहे हैं. एक होम मेकर शी इज अनपेड डूइंग जॉब 24/7. राइट. ठीक है. एंड इफ शी इज अ वर्किंग शी इज ऑल्सो डूइंग द सेम हाउस होल्ड वर्क अलॉन्ग विद हर वर्क प्लेस वर्क. राइट. आज का टाइम जो है वी से ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट. राइट. वुमेन इज नो वेयर बिहाइंड. शी इज गोइंग एवरीवेयर सोशली, culturally, politically, everywhere woman is there. ठीक है. शी इज एडिंग टू द फाइनेंसेस ऑफ द फैमिली. राइट.
So all these things do lead to a challenge. That makes her multitasking. Right. True. She has to do the household work, Right. family, workplace, and the most important is self, which is often ignored by her. Ignored. True. So constant ignoring of the health issues leads to the worsening of the health. She does not understand if she will not take care of herself, she will not be take care of the family, she will not be take care of the workplace and the society she is working on. Right. So common challenging which the woman faces these days is, first is physical challenges. Physical challenges when if she is a working lady, long hours of the sitting jobs, Right. फाइन. उससे क्या होता है, लॉन्ग आवर सिटिंग जॉब से क्या होगा कि उसके हेल्थ इश्यूज में आएगा कि शी इज़ गेनिंग वेट लीडिंग टू द ओबेसिटी. पर लॉन्ग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सिटिंग लीड्स टू द मसल पेन्स, Right. लीडिंग टू द क्रॉनिक बैक एक्स, क्रॉनिक बॉडी पेन्स. ठीक है. एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ हमारे साथ अकम्पनी करेंगी हाइपरटेंशन, डायबिटिक एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स. Right. Next comes the nutritional aspect. Again, because of the busy schedule, she is not able to cook properly for herself. Oh, also. She will cook for the family, but Yes. when it comes to herself, she will offer, I will manage. I will manage. Right. And in those things, she becomes nutrition deficit. Right. ठीक है. And again, workplace पे long working hours, she is not getting proper time to eat her meals, to take her rest, and even water intake at times is many times disturbed. Next is comes to the reproductive system. Because of the again ill health, proper sleep नहीं लेती हैं because of the have work schedule, Busy schedule. family schedule, so that leads to the insomnia. And as we all know कि proper अगर sleep नहीं होगी तो वो हमारी पूरे body को affect करेगी. उससे हमें स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी इंक्रीज होएंगी. इवन हमारा बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस भी होना शुरू हो जाएगा. जैसे कि लेडीज़ में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें या तो पीरियड्स बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं हैं, जब बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं. एट टाइम्स वो पीरियड्स डिले होकर भी आने लग जाते हैं, जिसको कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रीज़न भी बनना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट कम्स इज कि अगर प्रोलॉन्ग सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है तो जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण और भी जैसे प्रॉब्लम, थायराइड इश्यूज हो गए, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाती हैं. लास्टली एंड नॉट द लीस्ट, वर्किंग वुमेन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो अपने आप को टाइम ना देने के कारण फिजिकल एक्टिव नहीं रहती है. Very less physical Exactly. activity. Right. क्योंकि जब तक हम फिजिकल एक्टिव नहीं रहेंगे, जो हमारे मेंटल स्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो बॉडी पेन्स हैं, वो कभी भी हमारे ख़त्म नहीं होते. नहीं. तो मेंटल वेलबींग भी हमारा एक्सरसाइजेस के थ्रू हमारा काफ़ी मेंटल वेलबींग हमारा पॉसिबल है. क्योंकि मेंटल वेलबींग में क्या होएगा कि सबसे पहले सबसे बड़ा रीज़न होता है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन. Right. इसका सबसे कारण ये भी आ जाता है कि वो खुद के लिए टाइम नहीं दे रही. शी इज़ ओवरवर्क्ड Overworked all the time. ओवरवर्कड फ्रॉम द वर्क प्लेस, फैमिली. Right. तो उसके कारण धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है कि जब वो मेंटली इल होना शुरू हो जाती हैं, दे स्टार्ट इग्नोरिंग द सिम्टम्स. Yes. उसमें क्या होता है कि अपने पीयर्स से दूर होना शुरू हो जाती है, सोशल इंटरेक्शंस बंद कर कम हो देती हैं, जाती है. एंड धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस पे और घर पे कम हो जाती है, जिसके Kind of कारण isolation आइसोलेशन. में चली जाती है. एग्जैक्टली. Right. तो उसके कारण बहुत बार क्या होता है कि फैमिली डिस्प्यूट्स भी शुरू हो Start हो जाते हैं धीरे धीरे. देन अगेन जैसे हमने बात की है कि लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होने के कारण, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होने के कारण, एक्सरसाइज ना होने के कारण ओबेसिटी आनी शुरू हो जाती है. Yes. Major या फिर factor. माल नरिशमेंट, हम अंडरवेट होना शुरू हो जाते हैं. इन दोनों केसेस में जो हमारी बॉडी इमेज है वो खराब होना शुरू हो जाता है, एंड दैट फर्दर एड्स टू द इल मेंटल हेल्थ ऑफ द लेडीज. Yes. And then you lost your confidence also in all this is happening Exactly. with you, right? उनसे इन सब प्रॉब्लम से क्या होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब रीजंस के कारण क्या होता है कि जो यंग फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पीसीओ तो होता ही होता है, इनफर्टिलिटी. बिकॉज Right. अभी क्या हो रहा है कि वर्किंग लेडीज हैं, लेट मैरिजेस, लेट Right. चाइल्ड बियरिंग, तो इंसिडेंस ऑफ द इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज. Increasing. Okay. एंड दोज हु बिकम प्रेग्नेंट ऑल्सो, अगर वो अपना केयर नहीं रखती इन एनी एस्पेक्ट, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मदर को तो होती ही हैं,
और मगर जो अनबॉर्न चाइल्ड है राइट. उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि बच्चा टाइम से पहले हो गया है, बच्चे का वेट प्रॉपर नहीं आ रहा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है. ऑल दिस लिंक्ड बिकॉज ऑफ द इल मैटरनल हेल्थ. Right, ma'am. And lastly, not the least is, as we all know, the cancers are booming up. Yes. Female में cancer incidence is again on the rise. Breast cancer is one of the leading cause of the female mortality. Okay. Then comes the and cervical cancer, next female gynec cancer we say is on the fourth after the lung and the colorectal cancers. Right. तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं पर हमारे लाइफस्टाइल के की साथ वजह से लिंक्ड ही है. हैं. Okay, that's why the incidents are increasing Exactly. day by day. हाँ So, जी. ma'am, how can we prevent, and what are the signs, early signs wherein we should know that what is the time when we should consult a doctor to see a doctor? What are the signs? सबसे पहले तो कैंसर समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है. कई बार कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, दे रन इन द फैमिलीज. Okay. जिनके फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर्स हैं दे बिकम मोर प्रोन फॉर द फर्दर कैंसर्स. Okay. कुछ जीन म्यूटेशंस होती हैं जो कि हमारे कैंसर प्रोन हमें बना देती हैं. सेकेंड इज़ लाइफस्टाइल हमारा, कि हम कैसा लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं. हम कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे. Right. हमारे कोई हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है. अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर को हम ले लें तो इट रन्स इन द In फैमिलीज. the families. Okay. ठीक है. कुछ जीन म्यूटेशंस होती है. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज गिवन इन सर्टन कंडीशंस अगेन ऐड टू द ब्रेस्ट कैंसर. Okay. अब बाकी अगर हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात, कैंसर्स की बात करें तो अगेन हमारे पीरियड्स कौन सी एज में आ रहे हैं. फर्स्ट पीरियड्स अगर हमारे बहुत जल्दी शुरू हो गए, जहाँ हमारे पीरियड्स बहुत लेट बंद हो रहे हैं, जहाँ हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, हमारे कितने बच्चे हैं, किस एज में हमारी प्रेगनेंसी हो रही है. Okay. तो ये सब फैक्टर्स हमारे अगेन कैंसर्स के साथ कहीं ना कहीं पर Relate लिंक्ड करते हैं. रहते हैं. Okay. तो सबसे पहले तो हमें वार्निंग साइंस पता होने चाहिए कि हमारे कैंसर्स के लिए क्या क्या वार्निंग साइन है. तो फर्स्ट टॉकिंग जो मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, दैट इज़ द ब्रेस्ट Breast कैंसर. cancer. तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूरी है कि हर महीने में मंथली आफ्टर योर पीरियड्स आर ओवर कि हम अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें कि ब्रेस्ट साइज में कोई अनइवननेस तो नहीं है, Okay. कोई एबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई मास पाल्पेबल तो नहीं है, कोई जो ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई एक्जिला में जो हमारी आर्म पिट है वहाँ पर कोई हमें ब्रेस्ट में जब वहाँ पर कोई हमें नोड्यूल तो नहीं मिल नहीं रहा. मिल रहा. अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है तो ऑब्वियसली मीट योर डॉक्टर. Doctor. नेक्स्ट कमिंग इज द सर्वाइकल कैंसर, नेक्स्ट कैंसर इन द फीमेल. तो सर्वाइकल कैंसर एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द रीजंस के हमारे जो रीजंस क्या क्या है कि जो अभी हम डिस्कस किए हैं. साथ में मोस्ट कॉमन इज HPV वायरस Okay. जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, विच इज़ द मेन से के कैंसर कॉजिंग एजेंट. Agent. Okay. एंड द बेस्ट पार्ट दिस डेज इज कि वैक्सीनेशन हैज़ कम अगेंस्ट इट. Okay. तो इसे के 2 जिंदगी, जैसे हम बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं टू प्रिवेंट द डिजीजेज, तो इसे के 2 टीके कैंसर के. Okay. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ द 9 years till 14 years 2 injections of the cervical cancer that we say के HPV against HPV can protect them from the cancers. So, ma'am, is this for lifelong? If Yes. Prevention. Yeah. Okay. Though initially till 9 to 14 years there are 2 doses of the cancer, Okay. and after the age of the 14 there are 3 doses of the cancer, and which can be given till the age of the 45. Okay. And next is Pap cancer screening. Cervical cancer screening can be done through Pap smears, which has detection of the, in that Pap smears we can always go for the detection of the HPV virus also. Okay. So all these things we can not protect the cancer, but yes, through the screening like Pap smear we can early detect the cancer. Detection is And early detection means her life जो expectancy है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Yes. right. Then rest comes the uterine cancer, vulval cancer and the vaginal cancers. तो vulval cancers के लिए अगर आपको कोई abnormal
बॉडी पे लाइक प्राइवेट पार्ट पे नॉर्मल पिगमेंटेशन दिख रही है, तो देन श्योरली यू शुड सीक अ डॉक्टर. रेस्ट ऑफ द कैंसर्स वी एनुअली जो हम बॉडी चेकअप्स रहते हैं, वी कैन ऑलवेज स्क्रीन थ्रू. यस. रेस्ट अगर कोई हमारी बॉडी में लाइक एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं, या कोई हमें जल्दी जल्दी हमें थोड़ा सा खाना खाते हमें फुलनेस फील होने लग जाती है, या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर. Any abnormal symptom which is persist more than beyond 2 weeks, always consult your doctor. मुझे लगता है मैम फीमेल्स में हमने ये ज़्यादा देखा है दैट दे कीप ऑन इग्नोरिंग देयर ओन हेल्थ. Exactly. Even if they are facing or they know that there is something wrong with their body, they keep on ignoring it. That might be, it will get resolved on its own. We wait till the end and then we see a doctor. See, there are many myths also. Like post-menopausal ladies, when they go through the post-menopausal transition, the periods do become irregular. Right. तो वो कई बार उसमें इग्नोर कर देती है, ये तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ के हमारे पीरियड्स जाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो That's कोई why बात it is नहीं. there. But they forget कि it may be the beginning of some cancers in the body. Right. और after menopause also, if there is abnormal bleeding from the genital tract, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा होगा, हमारी बॉडी की गंदगी साफ हो गई. दिस इज नॉट द फैक्ट. That should be taken seriously, and adequate treatment should be taken for the same. So the screening and test should be done on regular basis. Exactly. So that we can know at the first stage only. Yes. And the और treatment. जिनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स है, तो उनको ज़्यादा टाइमली अपनी जो है स्क्रीनिंग शुरू Screening करनी करवानी चाहिए. चाहिए. Right. So ma'am, what will be the prevention from this breast cancer and ovarian cancer? Will there be any factors which can we can bring in our lifestyle or day-to-day life to prevent all this? उसके लिए हमें शुरू से ही अपना जो लाइफस्टाइल है वो हमें ठीक रखना चाहिए. सबसे पहले तो जो हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसके कारण हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे Obesity, right. रीज़न कैंसर का बन जाता है, वो हमें दूर करना चाहिए. रेस्ट इज़, अब अगर हम प्रिवेंशन की ही बात करें, तो हमें अपना लाइफस्टाइल जो है इस ढंग से रखना चाहिए कि अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो स्ट्रेस फ्री कहने से सिर्फ स्ट्रेस फ्री नहीं कि मैंने स्ट्रेस नहीं लेना, आई विल बिकम स्ट्रेस फ्री, नो. तो सबसे पहले तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा. अब बहुत लेडीज़ ये कहती हैं कि दे डोंट हैव द टाइम, Right. वर्क प्लेस पे दे डोंट हैव द टाइम don't टू, have तो time. उसके पास टाइम ही नहीं है. मॉर्निंग में जाती है, इवनिंग में आती है, हमारे पास टाइम नहीं है. एग्री, उनके पास टाइम नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे. उसके लिए उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले अगर वर्क प्लेस पे हैं तो एवरी 2 to 3 आवर्स के बीच में उठना है, 10 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करना जरूरी है. है. सेकेंडली, जो भी उनका मील्स का ब्रेक होता है, उसके अंदर अगेन आफ्टर हैविंग देयर मील उनको वॉक करना ही करना चाहिए. थर्ड थिंग इज एलिवेटर्स की जगह पर टेक द स्टेयर्स. वो आपका फिजिकल एक्टिविटी वहीं पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता रहेगा, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं अगर वो नहीं भी कर पाते तो दिस विल बी सफिशिएंट. Okay. सेकेंड इज मील्स स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगेन regular मील्स meals. स्किप करेंगे हमारा जो बॉडी इम्यूनिटी है वो कम होएगी. अगेन व्हेन द बॉडी इम्यूनिटी इज लो विल लीड टू द फर्दर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर्स. अगेन कैंसर्स, Right. जहाँ पर बॉडी इम्यूनिटी हमारी वीकेंड आ जाती है, वहाँ पर हमें कैंसर्स इजीली हमें होने के चांसेस रहते हैं. तो अभी क्या होता है कि हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो वर्किंग स्नैक्स आप अपने साथ कैरी कीजिए, जिसमें आपके सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए. जो इजी चीज़ें हैं जैसे बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, जंक फूड्स हैं, दे शुड बी केप्ट अवे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हाई लेवल ऑफ द शुगर्स, सॉल्ट्स, दैट डैमेजेस Yes. अस. अगेन डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं पर फिर हमारा एक रीज़न ऑफ द कैंसर्स का बन जाती है. हाइड्रेशन के अभी बार बार हम क्या कहते हैं कि यूजली 8 to 10 ग्लासेस Of एडिक्वेट water. हाइड्रेशन, वो अगेन आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी की हेल्थ है, उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है. Right. थर्ड नेक्स्ट इज, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं तो मेडिटेशन हमारी बॉडी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाता है. उससे क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं पर एग्जिट होना शुरू हो जाता है. Right. उसके अलावा जो है स्ट्रेस में कई बार क्या होता है कि हम एक्सेस कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, स्मोकिंग,
इवन ड्रग्स, अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स के लिए चले जाते हैं। अगेन वो भी कहीं ना कहीं पर हमारी बॉडी को हार्म करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीकन आउट करता है। अब हमने कई बार देखा है कि इन्फेक्टेड बच्चे सिरिंजेस या एडल्ट सिरिंजेस यूज़ करते हैं, विच कैन लीड टू फर्दर हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस, HIV एंड अदर मैनी मोर। अगेन ये भी हमारे लिए फिर आगे कैंसर या हमारी वीकेंड इम्यून सिस्टम का एक रीज़न बन जाते हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, adequate sleep of 6 to 8 hours is a must Is a must. for a healthy Right. life. Again फिर वही ईयरली आप अपने डॉक्टर्स के पास जाकर अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जनरल चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड ये सब ज़रूर करवाएं, ताकि आपकी बॉडी में अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है दैट कैन बी पिक्ड अप एट अर्ली स्टेज early बिफोर इट stage. इज टू लेट। थैंक यू सो मच मैम। सो जैसा हमें डॉक्टर वंदना मित्तल ने बताया कि अगर हमें डेली रूटीन में कुछ भी डिफरेंट या एबनॉर्मल अपनी बॉडी में लग रहा है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर सेल्फ स्क्रीन, गेट योर सेल्फ चेक्ड, एंड ऑल द चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग इज अवेलेबल एट पारस हॉस्पिटल पंचकूला. वी आर हैविंग आवर वीकली कैंप्स ओवर देयर, सो डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ एंड विजिट अस. थैंक यू सो मच.